All right, hello and good evening, everyone. Welcome to current affairs session. All right, and I think a few have joined. Okay, good evening, Ishita, and good evening, Radhika, and good evening to everyone else who is present. Okay, so yeah, 1st of December. I know in your school, I mean, for a few of you, pre-boards have started already, and I think for a few of you, they'll start in the first week of, or probably second week of December. All right. So all the best to everyone who is appearing for pre-boards. Okay. So one piece of advice: do not take too much stress of it. Okay. Uh, Try to utilize your time as much as possible, and try not to waste your time. Okay, try not to see reels or YouTube shorts or YouTube videos or on WhatsApp, try not to waste your time. December, excuse me, December, January, February, March, only 4 months you have to put in. And if you put in 4 months of utmost hard work, then no one can stop you. For your CBSE or for your CUET, everything is taken care of in this 4 months. Okay, you just have to be aligned, uh, you know, with your focus, everything to to the goal. Okay, so few of you have joined: Aditya, Aman, Guntas, and then we have Harshit, then we have HP. Okay, HP, and then Ishita or Jia, and then we have Muskan and Radhika, Raghav, Rashi, Rex, and Simar. ठीक है, so 13 of you. धीरे धीरे बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं. Slowly and steadily everyone is joining. All right, so hmm, um okay, so Harshit is asking, this class it for CUT or CLAT? देखो, CUT और CLAT दोनों के लिए applicable. This class is applicable to for the both of the exams, because current affairs is not segregated for CUT specifically or for CLAT. So current affairs is current affairs. Okay, so even for IPM they might ask you, well, this happened, that happened, वगैरह वगैरह. So the more you know, the better it is. तो GK में we don't have current affairs में, तो like हर exam में आ जाता है. तो that way it is. It is one section that is okay for everything. Okay. All right. Okay. So, anyone who's appearing for CLAT on the 3rd? कोई है यहाँ पे who's appearing for CLAT on the 3rd? Do we have anyone with us today? I don't think anyone है. अच्छा हर्षित है. Okay, हर्षित, बढ़िया. Okay, तो हर्षित, all the best. ठीक है, do really well. And I would suggest you not to take excessive pressure. सबसे गलत काम आप कर सकते हो अपने साथ, वो है प्रेशर लेना अनवांटेड, कि यार होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर प्रिपरेशन, कि जितना किया अभी तक बहुत बढ़िया किया, एंड यू विल गिव योर बेस्ट. है ना, यू विल गिव योर बेस्ट. तो दैट शुड बी द अप्रोच. ओके, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे टेंशन में बहुत चीजें गलत करेंगे, तो आप उनमें से एक मत होना. ठीक है, जस्ट बिलीव and read everything properly before marking your answer, before marking your option. Always double check कि मैं B मेरे को लग रहा है तो मैंने B ही मार्क किया है ना, C तो नहीं कर दिया कहीं. दैट वे. ठीक है, रेस्ट अश्योर्ड, सब अच्छा होगा. ठीक है, कुछ ज़्यादा सोचना मत कि थॉट्स चीज़ें खराब कर जाते हैं. ठीक है, ठीक है. ओके. एक्सक्यूज मी. अच्छा, whoever is wishing to have a mentoring session with me, किसी को mentoring session लेना है, तो मैं नेक्स्ट वीक, आप एक काम करना, मैं ट्यूसडे को ना, मैं ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे में से 3-4 दिन ना स्लॉट्स खोल दूंगा अपने नेक्स्ट वीक के. तो आप उन उन टाइम के दौरान आप ले लेना, एंड प्रॉब्ली टुवर्ड्स द एंड इवनिंग और लेट नाइट, मतलब मैं ऐसा खोलूंगा, तो आप तब उसको बुक कर लेना. ठीक है, whoever wants to have a मेंटरिंग सेशन. ठीक है, मैं चाहता हूँ मेंटरिंग सेशन आप ले लो. वाई? बिकॉज मेंटरिंग सेशन का फायदा ये होगा कि इस वक्त सीबीएसई पे कितना ध्यान दे, ऑनलाइन होगा इस वक्त. सीबीएसई पे कितना ध्यान दें, कैसा ध्यान दें, और सीयूटी की आईपीएम की प्रिपरेशन को कैसे हैंडल करें, और दोनों कैसे लेके चलें, और क्या अप्रोच रखनी चाहिए. तो एक बार वो माइंड क्लियर हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का शेड्यूल बनता नहीं है, अभी शेड्यूल बनाने में दिक्कत है. तो एक बार उसके बारे में बात कर लेना, अगर आप चाहते हो तो बैठ के बात कर लेंगे. अभी कुछ बच्चों ने बात की है एंड दे आर प्रीटी सेटिस्फाइड
कि इसको कैसे लेके चलें, सीबीएसई पे कितना ध्यान देना है, तो कॉलेज को कैसे करना है, सीयूटी छोड़ना नहीं है अभी, थोड़ा सा रखना है, तो कैसे रखना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो काइंडली अगर आपको लगता है बात करनी है तो मैं स्लॉट्स खोल दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक उसको अपने आप ही बुक कर लेना, और अकॉर्डिंगली फिर हम लोग में ना विल सिट एंड विल स्पीक। और एक काम और कर सकते हो, आप अपने अपने सेंटर पे भी बोल सकते हो कि हमें मेंटरिंग लेनी है, तो उनके थ्रू भी बात कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। जिनका सीबीएसई नहीं है कोई बात नहीं, वो सीबीएसई को छोड़ के बाकी बातें कर ले, अपने एग्जाम वाली बातें कर ले, ठीक है। जिनका सीबीएसई है वो सीबीएसई की बात करें, जिनका नहीं है वो बाकी बात कर लें। तो वट एवर योर प्रॉब्लम इज वी कैन स्पीक ऑन दैट। ऑलराइट, ठीक है, चलो। ऑफलाइन अभी मुश्किल है भाई, अभी आप ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन विल फिगर आउट, ठीक है, हम उसका भी कर लेंगे, पर अभी ऑनलाइन ले लो, एक बार ऑनलाइन ले लो, यू विल अंडरस्टैंड, उसके बाद वी कैन डू इन द नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ओके, चलो। सो आई थिंक अभी तक सारे बंदे आ गए हैं, दिस इज द टाइम, बाय दिस टाइम एवरीवन कम्स, ओके। सो दिस इज योर December 1st, लास्ट वीक में वी couldn't have a class. We were supposed to have a class, but for some reason, some unwanted reason and some very important reason, the class couldn't happen. So as we all know that last class of every month is a revision class, okay, so this is the extension of the last class. So दिस क्लास इज रिवीजन ऑफ ऑल द नवंबर करंट अफेयर्स। तो हम हमेशा आगे आगे पढ़ते हैं लेकिन एक रिवीजन करना भूल जाते हैं। सो दिस क्लास इज रिवीजन ऑफ ऑल द नवंबर। तो जो क्लैट के बंदा कल परसों पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, और बाकी बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, बिकॉज रिवीजन के स्टॉप्स प्रिपरेशन के बीच में होने चाहिए। आपकी प्रिपरेशन की गाड़ी आगे बढ़ रही है लेकिन बीच में रिवीजन वाले स्टॉप्स नहीं है, तो वो सब बेकार है, ठीक है। तो आज है क्लासेस फॉर रिवीजन, लेट मी सी कितने बंदों को याद है, ठीक है। थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, बिकॉज अभी आप लोग प्रिपेयर करके नहीं आए हो, याद करके नहीं आए हो, तो जितना दिमाग में आएगा यू लेट मी नो क्या क्या आंसर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फटाफट, क्विकली विल स्टार्ट, ठीक है। हर्षित इज सेइंग याद है सर, लेट्स सी हर्षित, लेट्स पुट योर नॉलेज टू टेस्ट। ओके, सो रिवीजन क्वेश्चन है, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि फटाफट आंसर आएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे नवंबर मंथ का फुल रिवीजन करेंगे यार, तो हर मंथ का हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज नवंबर मंथ रिवीजन। चलो जी, स्टार्ट करते हैं, लेट्स क्विकली स्टार्ट। करंट अफेयर्स December 1st, all right, चलो। फर्स्ट वन, who among the following is the LG of JNK? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ये आपसे पूछा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के कौन है, दैट इज द क्वेश्चन टू यू। तो लावण्या का बहुत जल्दी आंसर आया, ठीक है, और सिमर का भी आया है, सुशांत का भी आया है, और वाह, प्रज्वल, तनिष्क, राधिका, हर्षित। तो वैसे ही अच्छी बात, गुंतास का भी आ गया, सही है। तो एक अच्छी बात है कि मैक्सिमम बच्चों का आंसर करेक्ट है, तो मैक्सिमम को याद है, एक दो का यहाँ वहाँ हो गया पर नंदलेस, पर मैक्सिमम का सही है। पर बाकी बच्चे क्या है, बाकी बच्चे तो बैठे हुए हैं, आई वुड एक्सपेक्ट एवरी सिंगल वन ऑफ यू टू आंसर। हर बंदे का आंसर आना चाहिए, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, ABCD जो अच्छा लगे लगाना है, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास तो गेस्ट लेने के लिए होती है, कोई स्ट्रेस नहीं है। जिया का भी आ गया है एंड राघव का भी आ गया है, सो ये बढ़िया है बहुत बढ़िया आंसर लगाए हैं, मैक्सिमम करेक्ट है, पर कुछ लोग के यहाँ वहाँ आंसर्स हो गए। गाइस, द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर वी हैव, करेक्ट आंसर इज मनोज सिन्हा। क्या आंसर है गाइस, मनोज सिन्हा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पे ए लिखा है पर इट इज डी, तो डी, मनोज सिन्हा इज करेक्ट, ठीक है। Someone has asked me कि I am attending for CAT 24, CAT, okay, CAT 24, yes yes, आप कर लेना चाहिए, बिकॉज जब आप GD वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आती हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है विच इज़ हेल्पफुल एवरीवेयर, एवरी सिंगल वे। आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छा आता हो या थोड़ा बहुत भी आता हो, यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है, आपको लेके बैठना नहीं पड़ता मैथ्स की तरह ही, आपको घंटों घंटों ये बीच में वो, जैसे आप खाने के बाद थोड़ा सा स्प्रिंकल करते हो ना, ये उसकी तरह है। जब आप GD में बैठोगे, तो GD में बैठोगे तब आप बात करोगे, अच्छा डू यू नो कि JNK में व्हाट इज इंडियाज डेवलपमेंट, व्हाट इज इंडियाज एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म, तो आप फटाफट बोल सकते हो कि हाँ, जम्मू कश्मीर में काफी डेवलपमेंट की है, वहाँ के जो LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वहाँ पे CM नहीं होता, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वो मनोज सिन्हा है। तो व्हेन यू थ्रो नेम्स ऐसे ऐसे खट 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 खट, तो वो आपका जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपका हाँ की बात कर रहा है इसको पता है, सो दैट वे, ठीक है। और ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है, मतलब ज्यादा हैवी भी नहीं है, और इट डजंट टेक टू मच ऑफ योर टाइम, हफ्ते में एक दिन है, तो आई थिंक यू शुड अटेंड इट, ठीक है, दैट वे इट इज। ऑलराइट, चलो फर्स्ट आपने देख लिया। हम्म, चलो, वन इज डन, वेरी नाइस, एवरीवन इज करेक्ट, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, चलो।
ओके, तो 766 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। 2008 में एक लैंड डिस्प्यूट हो गया था, वेस्ट बंगाल ने दिए हैं। आपको बताना है कि वो 766 करोड़ रुपीस वेस्ट बंगाल ने एज कॉम्पनसेशन किन को दिए हैं। सो दैट इज अ क्वेश्चन टू यू। आपको बताना है कि किन को दिए गए हैं 766 करोड़ रुपीस। क्या आंसर आया है? काफी लोगों के आंसर आ गए। सिमर का, राघव का, हिमांशु का, लावण्या का, सुशांत का, सबका ही सही आया है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर सबका सही आया है। एवरीवन इज करेक्ट। एक आध का यहाँ पे हो गया, बट दैट इज ओके, बट मेजर सबका सही है। ठीक है, जिनके आंसर गलत हो रहे हैं घबराने वाली बात नहीं है, आपका भी दोबारा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो क्लास में हमेशा रिवीजन ही होता है, सीखने को ही मिलता है। तो क्लास खत्म होगी तो सारे आंसर लेकर ही जाओगे। ठीक है, गलत भी होगा तो स्ट्रेस मत लेना। और काफी बच्चे लगा नहीं रहे आंसर। आई वुड एक्सपेक्ट एवरीवन टू आंसर। सारे बंदे लगाओ आंसर यार। क्वेश्चन समझो और उसका फिर आंसर लगाओ कि हाँ ये आंसर है, वो आंसर, जो भी अच्छा लग रहा है लगाओ। पर पार्टिसिपेट करो। मेरी गारंटी है पार्टिसिपेट करने के बाद आपका माइंड ज्यादा चलता है। ठीक है, यू आर मोर रिसेप्टिव टू आंसर्स, मोर रिसेप्टिव टू क्वेश्चंस। ठीक है, मोर रिसेप्टिव टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सखी का भी आ गया है, सखी का ओके, एंड गुंतास का भी देखा। बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी लगाना शुरू हो गए। बहुत अच्छे लगाया आप लोगों ने। अस्मित 12th बी। ओके, बड़ा स्पेसिफिक अस्मित का आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर है टाटा मोटर्स, बिल्कुल सही। टाटा मोटर्स जिसमें भी लगाया बिल्कुल सही है। तो आपको शायद एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ फटाफट। तो ये बात है, टाटा नैनो जब गाड़ी आई थी, तो नैनो गाड़ी का जो प्लांट बनने वाला था वो वेस्ट बंगाल में बनने वाला था। लेकिन वहाँ के जो किसान वगैरह थे उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर दिया था कि ये नहीं, हमें यहाँ से हटाओ वगैरह वगैरह, हमें बराबर रेट नहीं मिले हैं लैंड के। तो फिर उसको फिर आनंद फानंद में फिर गुजरात में शिफ्ट किया गया। लेकिन तब तक टाटा मोटर्स ने 1,000 करोड़ तक का अपैरेटस, बिल्डिंग बिल्डिंग सब कुछ खर्च कर दिए थे। तो अभी कॉम्पनसेशन मिला सुप्रीम कोर्ट से। देखो 2008 का मसला है, 2023 में जाके इसका कुछ पैसे मिले, भी कंप्लीट नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ऐसा इंडिया में हो जाता है। इंडिया हर जगह हो जाता है, तो अनफॉर्चुनेट था। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ऐसे फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे अफेक्ट आता है, बिजनेस की दुनिया में अफेक्ट आता है। तो इतना कॉन्फिडेंस भी गवर्नमेंट को देना भी चाहिए, सर्टेन स्टेट की गवर्नमेंट। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका जो मैंने बताया आपको, करेक्ट आंसर है टाटा मोटर्स। वेरी नाइस। ओके, लिसन नेक्स्ट वन। ओहो, चलो गया। विच इंग्लिश क्रिकेटर हैज अनाउंस्ड द रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट पोस्ट वर्ल्ड कप? ठीक है, जिनकी नजर तेज थी उन्होंने फटाफट आंसर भी देख लिया होगा। पर लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, कोई चक्कर नहीं है। अगर देख लिया तो अच्छी बात है, पता लग गया आपको, है ना? ठीक है। हम्म तनिष्क ने सबसे पहले आंसर, तनिष्क, हर्षित, देन वी हैव लावण्या। हम्म ठीक है, तो ये वाला ऐसे वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, पूछ सकते हैं। प्लस अगर आप आईपी मैट दे रहे हो, मान लेते हैं आप आईपी मैट दे रहे हो और आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, जो हो ही जाएगा, और इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, अच्छा व्हाट आर योर हॉबीज? कोई बंदा बोलेगा आई लाइक टू, है ना, आई लाइक क्रिकेट। कोई कह देगा आई लाइक क्रिकेट। डिड यू वॉच वर्ल्ड कप? हाँ जी, मैंने वो वर्ल्ड कप देखा था। अच्छा, डिड यू लाइक क्रिकेट? हाँ, क्रिकेट देखना पसंद है, खेलना पसंद है। अच्छा, तो अभी एक इंग्लिश क्रिकेटर है जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया अपना वर्ल्ड कप के बाद, कौन है वो? तो आप फिर पता होना चाहिए, डेविड विली। ठीक है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, द मोर यू नो द बेटर इट इज। ठीक है, तो डेविड विली बिल्कुल सही। काफी लोगों के आंसर आने शुरू हो गए थे, बिल्कुल सही भी है, डेविड विली इज करेक्ट। ठीक है, इस बार ऑस्ट्रेलिया जीता है, इससे पहले इंग्लैंड वॉज द विनर। आपको पता ही है, इंग्लैंड वॉज द विनर। और बहुत बुरे हालात हुए इंग्लैंड के इस साल हमारे यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, वैसे अंग्रेजों का ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया में बहुत अच्छा रहा है ना, 300 साल राज करके गए हैं यहाँ पे। पर अभी अभी थोड़ी बात नहीं बन पाई। ठीक है, अभी माहौल अलग है, अलग चीजें हैं। ठीक है, करेक्ट। चलो, तो तीन इज डन, चौथे पे आते हैं। तो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की एक लिस्ट निकली है, यूनेस्को ने निकाली है। तो उसमें कोझिकोड जो केरला का शहर है और ग्वालियर जो एमपी का शहर है, इनको कुछ टाइटल दिया गया है। तो ये बताना है आपने। बढ़िया बढ़िया, आंसर्स आ गए हैं, बहुत जल्दी जल्दी आने शुरू हो गए हैं। तो राधिका ने स्टार्ट किया। ओके, राधिका इज द फर्स्ट वन, देन लावण्या, देन प्रज्वल, फिर हर्षित, राघव, सुशांत, हिमांशु, जिया। सबके आंसर हैं आ गए, बहुत बढ़िया। पर बहुतों की नहीं भी आए, बहुतों की नहीं भी आए। मुश्किल से आई कैन काउंट, ये 10-11 बंदों के होंगे। 1/3 के आंसर आए हैं, बताइए। देखिए, 30 बंदे हैं, 1/3 के आंसर आए हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा? ये हमें, मैं चाहता हूँ सारे के सारे बंदे आंसर दें, और बहुत सारे बंदे चुपचाप बैठे हुए हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। ठीक है, चलो। तो कोझिकोड जो केरला में जगह है और ग्वालियर जो एमपी में जगह है, उनको लिस्ट में इंक्लूजन मिला है यूनेस्को की लिस्ट में। और करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए का आंसर, लिटरेचर एंड म्यूजिक। ऑप्शन ए, लिटरेचर एंड म्यूजिक। तो लिटरेचर के लिए कोझिकोड और म्यूजिक के लिए ग्वालियर, तो अलग अलग कैटेगरीज में इनको, इन शहरों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है,
ओके, ऐसे नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन। ओके, काजिन। काजिन एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। ठीक है, आई थिंक अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे इसको तो वो ध्यान देने के बाद आप पकड़ लोगे कि हाँ ये हो सकता है। इन चार में से अगर कुछ नहीं मालूम, लेकिन ध्यान से अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको किसी एक डायरेक्शन का अंदाजा लग जाएगा कि हाँ इस तरफ हम थोड़ा सा देख सकते हैं। ओके, ठीक है। सिद्धांत, अस्मित, देन ईशिता, देन हर्षित, देन प्रज्वल, देन राघव, सादिका, सबके आगे बढ़िया बढ़िया आंसर आ गए। सबके सही आंसर लग रहे हैं मुझे। ओके, तो ओके, ठीक है, सबके बढ़िया आंसर आए हैं, सबके बढ़िया आंसर है। आई थिंक सबने सही बता ही दिया है, सबने सही बता ही दिया है। और वो जो करेक्ट आंसर है वो है कजाकिस्तान। आज अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता बहुत लोगों ने समझ ही गए कि जो कैजेंड में जो आई एंड है वो इंडिया का है और के ए जेड जो है वो कजाकिस्तान का है। तो कजाकिस्तान इंडिया का जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर नहीं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब होता है जब दो कंट्रियां, तीन कंट्रियां, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा, मल्टीपल कंट्रियां ये ट्राई करती हैं कि जो भी असली में वॉर में जो हालात होते हैं, जो हालात हो सकते हैं, जो मिशंस होते हैं, जो मिशन हो सकते हैं, उनको दोबारा रेप्लिकेट करते हैं ये लोग। ठीक है, अपने यहाँ पे जैसे आप लोग प्री बोर्ड अभी दे रहे हो, ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप प्री बोर्ड दे रहे हो, तो वही चीज यहाँ पे होती है। तो इनका, इन लोगों का प्री बोर्ड होता है। ठीक है। हाँ वो गलत है, वो गलत हो गया, राधिका ने बिल्कुल सही बताया, वो डी लिखा है लेकिन वो सी ऑप्शन है। ठीक है, वो समझ जाना आप लोग, यहाँ पे डी आ गया बाय मिस्टेक, पर करेक्ट आंसर है सी, कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। इक्वाडोर का यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बना है? इक्वाडोर का यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बना है? तो इक्वाडोर एक कंट्री है, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, उसका यंगेस्ट प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं, उसकी हिस्ट्री में सबसे यंग। ठीक है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन है वो पूछ रहे हैं आपसे। अल्वारो नोबोआ, डैनियल नोबोआ, लुई गोंजालेस या नन। तो जो लुइसा गोंजालेस है वो तो हारी हैं, वो हारी हैं, उनको हराया गया है। और जो ऊपर के दो सरनेम जिनके सेम है, वो सरनेम फादर एंड सन की जोड़ी है, फादर एंड सन की जोड़ी है। और वो एनिमल वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एनिमल की कहानी अलग है। आप में से कितने लोगों ने देख लिया एनिमल? आज रिलीज हुई है। ठीक है, कितने लोगों ने देख लिया एनिमल? है कोई एनिमल, किसी ने एनिमल देखी है? कोई जो एनिमल देख कर आया है? ओके, कोई नहीं, आई थिंक किसी ने जवाब नहीं दिया। आई थिंक कोई, किसी ने देखी नहीं एनिमल। हर्षित कह रहा है आफ्टर क्लैट देखेंगे, बढ़िया। बाकी लोग ने, किसने देखी नहीं एनिमल? आई डोंट थिंक किसी ने एनिमल देखी है। um, अक्ष अक्षिता इज सेइंग सर हम तो आपका वेट कर रहे हैं, आप रिव्यू दोगे तो देखेंगे। अच्छा जी, मुझे पता नहीं था मेरा ये रोल भी है कि मैं आपके हाँ, बल्कि ठीक है। ट्रेलर तो बहुत शानदार है, ट्रेलर तो बहुत, मैं भी यही काम करता हूँ जो अक्षिता बता रही है कि मैं भी पहले देखता हूँ कि दुनिया ने क्या रिव्यू दिया है। क्योंकि बाकी लोग जो देख कर आते हैं, ट्रेलर की अलग बात होती है, लेकिन जो लोग देख कर आते हैं वो बताते हैं कि बहुत बढ़िया है या बहुत बेकार है, हाइप अच्छी है, हाइप बेकार है। तो मैं भी वेट करता हूँ कुछ दिन। ठीक है अक्षिता, जैसे मुझे पता लगेगा आई लेट यू नो। पर मैं ट्रेलर का जो मूवीज लोग देख कर आए हैं उन्होंने बोला है कि पिक्चर बहुत अच्छी है। बहुत वायलेंट पिक्चर है, बहुत वायलेंट पिक्चर है। और इतनी वायलेंट है कि लोग वहां पे, मतलब मजाक में कहा था कि लोग जो मूवी देख रहे हैं वो भी काफी चार्ज अप या पंप अप हो गए थे। ठीक है, तो ऐसी कहानी हो जाता है। ठीक है। ओके, सो बहुत लोगों ने बोला नहीं देखी है, बहुत बढ़िया। इट वॉज ए ट्रिक क्वेश्चन फॉर यू गाइज, इट वॉज ए ट्रिक क्वेश्चन। अगर कोई बोलता ना मैंने देखी है तो बताता है उसको भाई प्री बोर्ड चल, तुम पिक्चरें देख रहे हो। ठीक है, प्री बोर्ड चल रहे हो, पिक्चरें देख रहे हो। तो अच्छा किया आप लोगों ने नहीं देखी, बहुत बढ़िया। पिक्चरें आती जाती रहेंगी, प्री बोर्ड का टाइम दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, और ये आप, ये बात याद रखना, आप लोग प्री बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये तैयारी आपके बोर्ड का फाउंडेशन बना रही है। करेक्ट। तो डू नॉट स्टडी फॉर प्री बोर्ड कि प्री बोर्ड में नंबर लेके आने, प्री बोर्ड में नंबर लाने की जरूरत नहीं कि प्री बोर्ड के नंबर किसी को याद। आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करें, आप ऐसी तैयारी दो जैसे बोर्ड का पेपर दे रहे हो, उसी सीरियसनेस के साथ। ठीक है, उसी प्रिपरेशन हार्ड वर्क के साथ, वही लिखना, वही आंसर राइटिंग, वही घंटों घंटों बैठना, रात देर तक जागना, तो वो एफर्ट डालना है। इमेजिन करो बोर्ड का पेपर देने वाले हो आप लोग। ठीक है, तो उस लेवल पे आप करना आगे। बाकी अच्छा होगा, सब अच्छा होगा।
ठीक है, तो डैनियल नोवा बेटे हैं, एल्वारो नोवा फादर है, फादर सन की जोड़ी है। फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन है एक्वाडोर में। इज इनटू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल बनाना वनाना एक्सपोर्ट करते हैं। और इन्होंने भी प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन ये हार गए। ये कभी बन नहीं पाए, इनकी तमन्ना थी, तो बेटा बन गया है। यंग 35 ईयर्स का, ये बहुत यंग है। 35 तो बहुत छोटा होता है पॉलिटिक्स में। ठीक है, 37 पे आते हैं। मेरा हाउचो गबा, ये एक फेस्टिवल है, आपको बताना है कहाँ पे है। मेरा हाउचोंगबा, मेरा हाउचोंगबा। ठीक है, तो ये आपने बताना है कहाँ पे है, कहाँ का फेस्टिवल है, ये आपसे पूछे। बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को, आप लोग सही बता रहे हो आंसर ये वाला। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम। तो इनमें नॉर्थ ईस्ट में हमारे फेस्टिवल होता है। अब एक मैं हिंट देता हूँ, शायद हिंट की जरूरत ना पड़े जो आंसर आप दे रहे हो। कुछ महीने पहले इस स्टेट से बहुत सारी खबरें आ रही थी। देखिए, बहुत सारा यहाँ पे अनरेस्ट था इस स्टेट में, बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत अनरेस्ट था, तो उसकी बहुत खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रही थी कि बहुत गलत और बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स वहाँ पे हो रहे थे। मैं इतना बताना था कि सबने आंसर बता दिया। सबने आंसर बता दिया, अब सबके सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। द करेक्ट आंसर है वो है मणिपुर, ए मणिपुर, ए मणिपुर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मणिपुर में होता है ये फेस्टिवल। ठीक है, यहाँ पे डी लिखा है, कोई बात नहीं, मणिपुर है वो डी। आप बस वर्ड देखना, वर्ड क्या लिखा है, वो ABCD छोड़ देना। ठीक है, अरे नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा ग्रुप है जिसने AI का कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए एग्री कर लिया कंपनीज के लिए। कंपनीज के लिए AI, AI जो है ना, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको पता है क्या है, ChatGPT सबको पता है। पर AI एक ऐसी चीज है जो, जिसके दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है पॉजिटिव, ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए हमारा काम आसान कर देगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। जो आप पूरी लाइफ टाइम में अचीव करते हो, वो आप कुछ सालों में अचीव कर सकते हो। कुछ साल भी क्या, मतलब एक प्रॉब्ली 1-2 साल में यू विल बी एबल टू अचीव, या उससे भी कम टाइम में, क्योंकि एवरीथिंग इज फास्ट एंड अप। आप बड़े बड़े ऐसे लिखना चाहो, आप ChatGPT को बोलो, खटाक से लिख देगा आपके लिए। आपको कुछ भी बनाना चाहो, वो बना के दे देगा। आजकल जो ग्राफिक डिजाइनर है बेचारे, उनके पेट पे लात पड़ गई, बिकॉज ऐसे AI आ गए हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। आप सारे देखते होंगे रीले वगैरह भी, कुछ नहीं करना आपको, बस वहाँ पे डालना है कि आई वॉन्ट a painting with mountains in the background, with in during a sunrise, and with the lake around the mountains, and a few this thing boats वगैरह वगैरह, and humans have enjoying themselves in a picnic atmosphere। आप डाल दो ऐसा, वो बना के दे देगा आपको। बस ये कोड पे काम होता है, मतलब टेक्स्ट पे काम होता है। तो ऐसे ऐसी चीजें आ गई हैं। तो एक तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है AI का। दूसरा एस्पेक्ट है कि AI बहुत बदमाश भी है, क्योंकि AI एक समझदार, अपना खुद का समझ है, जिसकी समझ खुद की होती है वो अपने हिसाब से चलता है। तो अगर वो इंसानों के खिलाफ चलना शुरू कर दिया तो क्या होगा। इस बहुत पॉजिटिव, मतलब बहुत ट्रू बात है कि AI हमारे हाथ से कुछ टाइम में निकल जाएगा, अगर हमने लगाम कस के नहीं रखी तो इसीलिए कंपनीज के ऊपर एक AI कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहते हैं। दुनिया में सब नंबर 1 कंट्री जो AI में सबसे आगे पहुंच चुकी है वो है US, ऑफ कोर्स। और चाइना उससे बस पीछे है। आप ऐसा कहते हैं, ऐसा दुनिया में कहते हैं कि चाइना US से सिर्फ 6 महीने पीछे है AI में। AI की टेक्नोलॉजी में सिर्फ 6 मंथ्स का गैप है, मतलब आप समझ सकते हो कि ज्यादा ज्यादा पीछे भी नहीं है। ठीक है, तो AI कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए कौन सी कंपनीज कंपनीज के लिए बनाने के लिए किसने डिसाइड किया है। आंसर्स आ गए हैं। एंड बिल्कुल सही बताया सुशांत ने, नेगेटिव है डीप फेक। डीप फेक अभी रिसेंटली आपको पता है, एक एक्ट्रेस का बन गया था, पॉलिटिशियन का बन गया था। आप मतलब वीडियो ऐसा आपको लगेगा कि यार वो बंदा कर रहा है, लेकिन वो किसी दूसरे बंदे का वो बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो इसका जो आंसर है वो है G7। ओके, वो है G7। या सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। हाँ, तो करेक्ट आंसर है इसका G7। बहुत बढ़िया, अब अगला देख लिया हमने, आगे आगे वाला क्वेश्चन भी आ गया। इनमें से मिस इनमें इनमें से कौन सा जगह होस्ट करेगा ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023। ये कहाँ पे होने वाला है, ये आपको बताना है। आंसर्स क्विकली क्विकली आ गए हैं, बहुत बढ़िया आ गए आंसर्स। तो दुबई, मिडिल मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कहाँ पे हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, जो बिल्कुल आपने गेस मारा है वो है दुबई। वो है दुबई, इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वो है एब्सोल्युटली करेक्ट, दुबई। चलो आगे बढ़ते हैं क्विकली क्विकली, चलो।
थोड़ा जल्दी करेंगे, आई नो आपको भी निकलना है, ठीक है, मतलब पढ़ाई के लिए निकलना है। ठीक है, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, जस्ट मोमेंट। या गाइस, तो अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA 95th मेंबर कौन सी कंट्री बन गई है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इंडिया ने स्टार्ट किया है अलॉन्ग विद फ्रांस, और ये दुनिया की सारी कंट्रीज में सोलर को आगे बढ़ाना चाहता है। देखो, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब है ट्रॉपिक्स के अंदर पड़ते हैं हम लोग, मतलब इक्वेटर के ऊपर पड़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो सनलाइट अच्छी खासी मिलती है हमें। अभी सर्दी आने वाली है तो सनलाइट की बड़ी कमी महसूस हो रही है हमें, पर कोई नहीं, सनलाइट अच्छी मिलती है। तो बहुत अच्छा हम लोग डिपेंडेंस हमारी सनलाइट पे हो सकते हैं, हम उसको हार्नेस नहीं कर रहे। सोलर पैनल्स आपने देखा है मेट्रो स्टेशन के ऊपर लगे रहते हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर लगे रहते हैं। कोचीन एयरपोर्ट जो है ना, केरला का जो कोचीन एयरपोर्ट है, दैट इज इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट जो फुली ऑपरेशनल है सोलर पैनल्स के ऊपर। मतलब वो ग्रिड से एनर्जी लेते नहीं है, वो सोलर पैनल से लेते हैं। बहुत सारे मेट्रो स्टेशन के ऊपर लगे होते हैं बड़े बड़े, आप देखना कभी, नोटिस करना आप लोग। ठीक है, तो ऐसे बहुत बड़े जगह जहाँ पे आपका एरिया ज्यादा है वहां आप लगा लेते हो, घरों में लगे रहते हैं आजकल तो। घरों में लगाए लोगों ने। आप घरों में छोड़ो, आप कभी देखना जो रोड साइड रेडी होती है ना, रेडी पटरी वाला, जो आपको आम या समोसे या आपको ये जो चीजें बेचते हैं, वो लोग अपनी रेडी के ऊपर थोड़ा सा वो लगा लेते हैं, एक छोटा सा एक पैनल लगाते हैं सोलर सिस्टम का, उसी से कनेक्शन लेके अपनी बत्ती जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं। तो इनोवेशन तो इंडिया में है ही, जुगाड़ तो क्या टेंशन है इंडिया में। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही है, आंसर्स आ गए, बढ़िया। तो अद्विक ने बहुत बेहतरीन आंसर दिया, अद्विक का आंसर इज द आंसर ऑफ द डे। ठीक है, आंसर दिया अद्विक ने। सर, इसका आंसर A, B, C या D में से कोई एक पक्का होगा। ठीक है, अद्विक, आपके इस आंसर को देखने का मुझे लगता है मुझे बोलना पड़ेगा, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ आंसर। ठीक है। ऐसे खतरनाक आंसर दिया आपने कि यार क्या ही बताएं। ठीक है, तो आंसर जो है जिसका करेक्ट आंसर है वो है चिले। तो करेक्ट आंसर है चिले। चिले साउथ अमेरिकन कंट्री है, इससे साउथ अमेरिकन कंट्री। ठीक है, सैंटियागो से कैपिटल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ओके, अद्विक कह रहा है माई प्लेजर। बढ़िया अद्विक भाई। ठीक है, डैश एस्टैब्लिशेस फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया जांजिबार। तो तंजानिया के जांजिबार में पहला जो जो कैंपस बनाया है, कौन सी वाले IIT ने बनाया है, ये आपको बताना है। कौन सी वाली IIT ने बनाया? IIT मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली या रुड़की? लेट्स सी, लेट्स सी। तो आपको अगर शायद अगर मालूम है IITs तो कहाँ, इंडिया में सारे IITs करेक्ट। तो ऐसे, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ टाइप्स किए हैं अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कि हम वहाँ पे अपना इंटरनेशनल कैंपसेस बनाएंगे, वहाँ पे हम अपने इंटरनेशनल कैंपसेस बनाएंगे उन कंट्रीज में, और वहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो एक तो ये अच्छी बात है, पढ़ाई वढ़ाई हम दुनिया को भी करवा रहे हैं। एक बात और भी है, एक बात दूसरी ये है कि अफ्रीका में हम अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अफ्रीका में बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है चाइना का, तो हम उनको काउंटर करना चाह रहे हैं। तो ये जो जो आपको दिखता है ना, ये एक ओवरऑल पिक्चर भी होती है इसकी, कि इंडिया इंडिया को क्या जरूरत है, आप बताओ क्या जरूरत है इंडिया को कि अफ्रीका के तंजानिया कंट्री में जैंजिबार में जाके एक कैंपस खोलने की? मतलब क्या ही जरूरत है? इतनी सारी कंट्रीज में से वो कंट्री क्यों है? वो कंट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे दुनिया का उतना ध्यान नहीं गया है। ठीक है, ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस है नहीं, लेकिन आपको मैं बता दूं, अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज रिच इन मिनरल्स। वहां पे दुनिया जहान के मिनरल्स है। ठीक है, एंड अच्छी साइजेबल पॉपुलेशन है, अच्छा मार्केट है। ठीक है, तो आप उसको डेवलप करके यू कैन यूज इट। तो इंडिया अपना इन्फ्लुएंस वहां पे बनाना चाहता है धीरे धीरे। एक कंट्री है, आई थिंक इफ माई मेमोरी सर्व्स मी करेक्टली, इसका नाम है एरिट्रिया। ठीक है, नहीं एरिट्रिया, जिबूटी। जिबूटी नाम है उसका, इट स्टार्ट्स में DJI, जिबूटी कहते हैं। तो जिबूटी कंट्री है, वहां पे आप मानोगे नहीं, जिबूटी कंट्री के अंदर चाइना का एक मिलिट्री बेस है। ऐसा काम US वगैरह करते आए हैं, US वगैरह करते हैं, लेकिन चाइना का अफ्रीका में एक ही मिलिट्री बेस है, पहला मिलिट्री बेस है वो जिबूटी में था। जिबूटी में है, तो वहां पे मिलिट्री आर्म, चाइना की मिलिट्री वहां पे स्टेशन है। कहीं भी दुनिया को जरूरत पड़ेगी चाइना को अपनी मिलिट्री भेजने का, वहां से भेज सकते हैं आगे। तो इस तरह का इन्फ्लुएंस इंडिया भी चाहता है कि यार हम भी अपने बंदे बैठाए ना, हम भी बैठाए अफ्रीका में, हम भी बैठाए किसी कॉन्टिनेंट में। तो इन्फ्लुएंस बनता है, वी वांट बूट्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये हम भी करना चाहते हैं। ये चीजें शुरुआत धीरे धीरे ऐसे होती है, तो ये हम अपने इन्फ्लुएंस फैला रहे हैं, क्योंकि इंडिया वांट्स टू बी अ व्हाट, विश्व गुरु। वी वांट टू बी अ विश्व गुरु, तो उन सब की तैयारी चल रही है। ठीक है,
ठीक है। अमन अमन इज सेइंग वाइब्रेनियम, भाई गजब, वाइब्रेनियम मिल जाए तो क्या बात है, ऐसा हो तो क्या बात है। ठीक है। ओके। अच्छा, क्लास के बाद जिसको रुकना है आप 5 मिनट रुक जाना, सुशांत सिंह, ठीक है सुशांत, रुक जाना 5 मिनट, ठीक है। बाकी जिसको भी रुकना है आप बात करना है, बात कर सकते हैं, ठीक है। आई विल वेट फॉर 5 मिनट आफ्टर द क्लास, ऑलराइट। ठीक है, तो इसका आंसर बता दूं मैं, आंसर क्या है इसका, जो करेक्ट आंसर है गाइस इसका आईआईटी मद्रास, तो आईआईटी मद्रास इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। इंडिया के 37 नेशनल गेम्स ऑफकोर्स कहाँ पे हुए हैं, नेशनल गेम्स कहाँ पे हुए हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आप सबको पता है, सबसे पहले तो हमारे स्कूल गेम्स होते हैं ना, स्कूल में खेलते हैं, तो स्कूल के बाद फिर हमारा क्लस्टर्स होता है, फिर हमारा रीजनल्स होता है, फिर हमारे नेशनल्स होते हैं। और नेशनल में आपने फोड़ दिया तो कहाँ जाओगे, आप जाओगे फिर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में आप अच्छा करते जाओगे, फिर आप जाओगे ओलंपिक्स में। तो इवेंचुअली वो गाड़ी, फिर बीच में हमने वो भी शुरू किया है, खेलो इंडिया गेम्स है ना। तो स्कूल गेम्स होते हैं खेलो इंडिया गेम्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल होते हैं, इनको भी हम पुश करना चाहते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं, हम लोग क्या पूरी दुनिया सोचती है ये बारे में कि यार इंडिया में दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी इंडिया इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस अमेजिंग स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, क्रिकेट की बात छोड़ दें हम लोग, क्रिकेट क्रिकेट की बात छोड़ दें, लेकिन उसके बाद आप बताओ, हमारा कोई दबदबा नहीं है, इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, इंडिया की जो इकोनॉमिक माइट है, पर इंडिया का एथलीट या इंडिया का जो स्पोर्ट्स कल्चर है या स्पोर्टिंग है वो उतना इफेक्टिव नहीं है। छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज फोड़ देती हैं यार, छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज फुटबॉल में बहुत अच्छी हैं, एथलेटिक्स में अच्छी हैं, साइकिलिंग में हो, ये हो वो, दुनिया भर जहान में वो है। हमारे अभी धीरे धीरे पुश मिलना शुरू हुआ है। बहुत सारी एनजीओज हैं हमारे यहाँ पे, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो फंड करती हैं। एक बहुत बड़ा वो ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड क्वेस्ट फॉर गोल्ड, ठीक है, ओलंपिक के लिए, ओलंपिक में हम गोल्ड मेडल चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत गोल्ड लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अब्रॉड में जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिजियो रखना पड़ता है पूरे साल भर, एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, आपकी मसल वसल की जान के रखेगा सब कुछ। तो वो सब हिसाब होता है, बड़ा महंगा महंगा काम है स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स इतना आसान नहीं, इवन पढ़ाई करना ज्यादा आसान है। पढ़ाई करने में क्या है, ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करो, कंपेरेटिवली, मतलब इतना भी आसान नहीं है, पर एमबीए करो बढ़िया जगह से, एंड यू आर प्लेस्ड, और फिर मेहनत आप करते जाओ, इवेंचुअली आप एक कॉर्पोरेट हाउस में घुस गए, फिर वो धीरे धीरे आपको पहुंचा देंगे आगे। पर स्पोर्ट्स में कि आपको हर जगह पे, हर टूर्नामेंट में आपको अच्छा करना पड़ता है, कहीं एक इंजरी हो गई, आप बाहर हो गए, है ना, और फिर इंजरी को फिर आपको फिर नर्स करना पड़ता है, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव दैट वे। चलो बढ़िया, 37 पूछ रहे हैं आपके, आपने आंसर बताए, करेक्ट आंसर है गोवा, बहुत बढ़िया, ठीक है। 12th के बोर्ड के बाद गोवा का चक्कर लगा लेना, बहुत लोगों का ड्रीम होगा। चले आना, बढ़िया जगह है गोवा, वैसे अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। नंबर 13 पे आते हैं क्विकली, नंबर 13 पे आते हैं। अच्छा, इन नेशनल गेम्स में 200 मेडल टैली पार करने वाला पहला कौन था। हाँ, अक्षिता ने बिल्कुल सही बताया, एथलीट्स आर नॉट गिवन द रिस्पेक्ट दे डिजर्व आफ्टर द हार्ड वर्क। बिल्कुल ठीक बात है अक्षिता, ये बात भी सही है, लेकिन ये बात भी बोलनी चाहिए कि एथलीट्स, अगर एथलीट्स बहुत अच्छा करेंगे देन दे गेट द डिजायर्ड रिस्पेक्ट, ठीक है, जो दे डिजर्व करते हैं, बट दे हैव टू आल्सो परफॉर्म। हम लोगों के पास, हम लोग उंगलियों पे गिन सकते हैं, हम नंबर 1 पॉपुलेशन के बावजूद, कि कितने स्पोर्ट्स पर्सन अलग अलग फील्ड के हैं, ठीक है। ओलंपिक में हम लोग वो छाप नहीं छोड़ पाते जो यूएस चाइना कर पाता है, हम लोग वहां जगह नहीं पड़ पाते, ठीक है। हम्म, ठीक है, गोवा 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 हो गया, चलो अभी नंबर बताओ कौन सा लग रहा है आपको, मैक्सिमम किसके पास है, सबसे ज्यादा 200 की टैली पार करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है, दो बहुत बड़ा नंबर है 200 की टैली। और वो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन महाराष्ट्र, यहाँ पे सी लिखा है, डी है, कोई चक्कर नहीं है, आप ए सी डी मत देखना, आप सिर्फ नाम देखना, महाराष्ट्र इज करेक्ट, ठीक है, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर, सबसे पहला स्टेट है महाराष्ट्र, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, ये बताओ, नेशनल प्रेस डे 2023 में हुआ था, 16 नवंबर को होता है, ये 16 नवंबर को होता है, तो इसकी थीम क्या थी, थीम वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं यार, तो आपको थीम बतानी है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप देख लोगे, आप ये पकड़ सकते हो। मीडिया इन दी एरा तो ठीक है, बाकी क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किससे हमको जोड़ना चाहिए। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत सबका आंसर अच्छा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। थोड़ा सा हम इसको स्पीड भी आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने, द करेक्ट आंसर इज इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल लर्निंग। आर्टिफिशियल लर्निंग हर जगह घुस चुका है, तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो जिंदगी में, तो आर्टिफिशियल लर्न इंटेलिजेंस का थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट भी लगाना शुरू कर लो अपनी लाइफ में, बहुत सुखी जिंदगी हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आप एआई को अभी दरकिनार करोगे तो बाद में जबरदस्ती पढ़नी पड़ेगी,
ठीक है, तो अभी वो चक्कर है जहाँ पे आप खुद से इसको इंक्लूड कर। चैट जीपीटी अभी प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, तो आई वुड हाईली रिकमेंड चैट चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो अपनी पढ़ाई में। ठीक है, उससे कुछ आंसर वांसर पूछो भाई कि कैसे कर सकते हैं, वो बताएगा आपको बढ़िया बढ़िया चीजें रेफर करके दुनिया भर में। चैट जीपीटी इज वन एग्जाम्पल ऑफ इट, देयर आर टन्स ऑफ इट। ठीक है, और देयर आर टन्स ऑफ अमेजिंग ए आई, जनरेटिव ए आई। ठीक है, 15 पे आते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर कौन है, आई थिंक ये सब बता ही देंगे, इसमें कोई ऐसा कुछ एक्सक्यूज मी है नहीं बात। ब्राजील, इंडिया, कोलंबिया और इथियोपिया, देखो सबको पता ही है वाला आंसर। चाय, इंडिया हमारा एक चाय प्रधान देश है, चाय ज्यादा पी जाती है इंडिया में ऑफ कोर्स। और वैसे आप सबको ये कहानी तो पता ही है चाय के बारे में कि इंडियंस कभी चाय पीते नहीं थे, जो पॉपुलर कहानी है। इंडियंस कभी चाय पीते नहीं थे, हमारे सभ्यता या हमारे कल्चर में कहीं चाय का जिक्र नहीं है। अंग्रेजों ने पिलवाने शुरू की थी चाय, और ऐसी पिलवाई की लत लग गई भाई, चाय के बिना बहुत लोगों की है ना आंखें नहीं खुलती हैं। चाय अगर कुछ टाइम के लिए नहीं मिले तो लोगों के ऐसे ना माइंड, सर दर्द होना शुरू कर जाता है, हाथ कांपना शुरू हो जाता है, नशा है बहुत बड़ा चाय। और अभी सर्दियां आ रही हैं तो देखो चाय की जो खपत होने वाली है इंडिया अक्रॉस, बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो चाय, चाय का प्यार अलग है इंडिया में। सही बात है। ठीक है, इंडिया में कॉफी कहाँ पे उगाई जाती है? इंडिया में कॉफी कहाँ उगाई जाती है? इट्स अ प्लेस कॉल्ड कुर्ग। कुर्ग साउथ में, तनिष, यस, कुर्ग कर्नाटका में जगह है, कुर्ग कहते हैं, COORG, COORG। वहां पे इंडिया में कॉफी प्लांटेशन है। और असली वही सॉइल और एटमो अपना अपना हवा वगैरह सब अच्छी है, तो इसलिए वहाँ पे मौसम वगैरह। और चाय दार्जिलिंग, वो तो पता ही है दार्जिलिंग सबको चाय के लिए। ठीक है, खूबसूरत जगह है दार्जिलिंग, बहुत प्यारी जगह है। ओके। ओके। ओके, चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। चलो, ब्राजील आंसर है, 16 पे आते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में ग्रेट बैरियर रीफ? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, कौन सी कंट्री में है? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर आ गए, करेक्ट आंसर आ गए। ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, मरीन। ठीक है, ये ग्रेट बैरियर रीफ टॉकिंग अबाउट, समंदर के अंदर है ये। तो जो ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया की जमीन ही तो है, कॉन्टिनेंट ही तो है, तो मतलब रॉक्स है ना, तो वो जमीन जब जितनी जल्दी फैलेगी तो कहीं पे जाके एंड भी ऐसा, ये बीच खत्म होता है उनका, यहाँ समंदर शुरू हो जाता है। तो जब कहीं पे वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है ना, ऐसे नीचे जाती है जमीन के अंदर, तो यहाँ पे नीचे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे छोटी छोटी फिशेज होती हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लैंक्टन्स होते हैं, तो वो अपना एक एक घर बना लेते हैं वहाँ पे। तो उनकी कॉलोनी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, फिशेस की। तो वहाँ पे एक बेहतरीन आपको एक नज़ारा दिखता है। आप लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, अगर आपको जानना है जनरली ये एक्चुअली में दिखता कैसे है, यूट्यूब पे चले जाना, बस डाल देना ग्रेट बैरियर रीफ डाल देना, आ जाएगी, वीडियोज आ जाएगी, आप देखना, बहुत बहुत सुंदर है वो। ठीक है, और बहुत वेल प्रोटेक्टेड है। तो आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। ओके, इनमें से कौन सी वाली लैंडलॉर्ड कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया लैंडलॉर्ड कंट्री है, ब्राजील है, स्विट्जरलैंड है, या जापान है? तो इनमें से कौन सी वाली लैंडलॉर्ड कंट्री है, ये आपसे पूछ रहे हैं। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जैसे नेपाल है, ठीक है, ऐसे भूटान है, जैसे मध्य प्रदेश है। कंट्री नहीं है पर स्टेट है, तो मतलब आसपास जोग्राफिकल एरिया जहां खत्म होता है उसके आसपास समंदर नहीं है, उसके आगे दूसरी लैंड है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं आपको। ठीक है, ओके, सो इसके भी आई थिंक आंसर्स आ ही गए हैं सबके। स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर, स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर। बाकी तो आपको पता ही है, सबकी जमीनें समुद्र से लगती हैं। ठीक है, जापान के 4 आइलैंड है, 4 मेजर आइलैंड है जापान में, होकाइडो, होन्शु, क्योशु, शिकोकाउ। तो ये 4 आइलैंड है जापान के, जिससे जापान आइलैंड बनता है। टेक्टोनिक प्लेट्स के मर्जिंग पे है, तो बहुत सारा भूकंप और सुनामीज और वो सब आती रहती है। पर जापान के लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ठीक है, कुडोस टू देम। जापानीज कल्चर के बारे में कभी पढ़ना, बहुत प्यारा कल्चर है, बहुत यूनिक कल्चर है, बहुत अच्छा कल्चर है ये, बहुत रेस्पेक्टफुल वाला कल्चर है। ठीक है, वहां पे ऐसे हाथ लग तो मिलते भी हाथ जोड़ के नहीं, झुक के मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत रेस्पेक्ट है वहाँ। ओके, 18 पे आते हैं। इंडियाज फर्स्ट हाई इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस इज नेम्ड। हाई स्पीड रेल सर्विस है। ठीक है, एक होती है मेट्रो, एक होती है आपकी ट्रेन्स, और एक आती है आपकी हाई स्पीड रीजनल सर्विस। तो मेट्रो तो एक शहर के अंदर अंदर है। ठीक है, और जो ट्रेन्स होती हैं, जो नेशनल ट्रेन्स होती हैं, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती हैं। और ये वाली रीजनल रेल सर्विस होती हैं, ये एक स्टेट के अंदर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल से यूपी का एग्जाम्पल है तो गाजियाबाद से लेके मेरठ, मेरठ से लेके आगे, तो ऐसे अगर आप कुछ बड़े शहरों को ज्वाइन कर लें तो विल गेट रीजनल हाई स्पीड से। इनका नाम रखा गया, तो इसका नाम क्या रखा हुआ है, लेट्स सी, लेट्स सी। यस,
अभी इसका आंसर नमो भारत है, पहले रैपिड एक्स था, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, नमो भारत बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, सही आंसर बता रहे हो आप लोग, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस, याद है आपको, बढ़िया बात है यार, याद होनी चाहिए चीजें, याद, याद ऐसे करो, एक बार याद रखो, एक बार में जितना हो सके मैक्सिमम रिटेन करने की कोशिश करेंगे, बाकी रिवीजन तो बीच में करते रहेंगे, तो चीजें पकड़ में आती रहेंगी। मैं आपको बार बार बोलता हूँ एक चीज, नंबर जो आते हैं ना एग्जाम में, वो पढ़ाई से नहीं आते, पढ़ाई से ज्यादा रिवीजन से आते हैं। अगर आपने कोई चीज एक बार पढ़ी है ठीक है, किसी बच्चे ने वही चीज 5 बार पढ़ी है तो भैया वो नंबर ले जाएगा आपसे ज्यादा, तो वही टेक्निक है। ठीक है, चलो 19 पे आते हैं, अमल चक्रवर्ती रिसेंटली पास्ड अवे, ये कौन थे? अमल चक्रवर्ती रिसेंटली पास्ड अवे, ये कौन थे? नहीं भूलेगा हर्षित भाई, नहीं भूलोगे आप। अमल अमल चक्रवर्ती रिसेंटली पास्ड अवे, ये कौन थे, ये आपको पूछ रहे हैं आपसे। पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट, लावण्या कह रही है, सखी कह रही है पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट, बिल्कुल सही है ये जवाब आपका, बिल्कुल सही है। ओके, यूएस गवर्नमेंट ने रिसेंटली अवार्ड दिया इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट को, नेशनल अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये कौन है? ये कौन है, ये आपसे पूछ रहे हैं। और इशिता का आ गया, राधिका का आ गया। इंडियंस हर जगह है भाई, इंडियंस हर जगह है, इंडियंस हर जगह है, और अपना झंडा गाड़ रहे हैं इंडियंस, तो हर हर डोमेन में, चाहे हर डिसिप्लिन में, चाहे इंडियंस पढ़ाई के मामले में हो, बिजनेस के मामले में हो, आर्ट एंड कल्चर के मामले, कहीं पे भी इंडियंस है एवरीवेयर। ठीक है, अब बिलियन प्लस पॉपुलेशन है, कुछ तो फायदा उठाएंगे ना हम लोग, इतने ज्यादा बंदे हैं हमारे। ठीक है, तो झंडे तो गाड़ेंगे हम। ठीक है, एंड वेरी ऑल्सो वेरी एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड एंड हाईली एम्बिशियस। ठीक है, एंड वेरी हार्ड वर्किंग इंडियंस। इंडियन डायस्पोरा जो अब्रॉड द अक्रॉस द वर्ल्ड है, जिस कंट्री में भी इंडियंस गए हैं, आप वहां पे इंडियंस की अच्छा ही सुनोगे। आप यूएस पकड़ लो, आप कनाडा पकड़ लो, आप यूरोप पकड़ लो, आप मिडिल ईस्ट पकड़ लो, आप यू कम टू साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी पहुंच जाओ आप, अफ्रीका में चले जाओ, जहां पे भी इंडियंस हैं, इंडियंस में नाम कमाए। ठीक है, फॉर द शेयर हार्ड वर्क। ओके, वेरी हार्ड वर्किंग इंडियंस आर। ऑलराइट, 21 पे आते हैं। ओके, इनमें से कौन सी कंट्री ने वीजा फ्री कर दिया है इंडियंस को, अपना टूरिज्म बूस्ट करने के लिए? ये पुरानी खबर है, अभी रिसेंटली कल परसों एक खबर आई है, जिसमें मलेशिया ने कर दिया है। मलेशिया ने बोला कि भैया वीजा वीजा नहीं लगेगा, आ जाओ। क्योंकि आपको पता है इंडियंस जब घूमने जाते हैं, मेजरली इंडियंस, तो हम लंबा ट्रैवल नहीं करते, बहुत सारे लोग कम छोटा ट्रैवल करते हैं, और सबसे छोटे में अच्छी जगह जो है वो है साउथ ईस्ट एशिया। और साउथ ईस्ट एशिया में है सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है। ठीक है, कंबोडिया हो गया, तो थोड़ा तो यहाँ तो इस जगह पे इंडियंस बहुत ज्यादा घूमने चलते हैं, क्योंकि नजदीक पड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया। बाकी जो अच्छी जगह कहाँ पड़ेंगी, वो पड़ेंगी यूएस, कनाडा, यूरोप में, वो महंगी भी है और दूर भी है। तो मेजर पब्लिक हमारी इस तरफ आती है, तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए वीजा हटा दिया कि भैया, मलेशिया ने हटा दिया, तो इसका मतलब है कि थाईलैंड मत जाओ, सिंगापुर मत जाओ, ठीक है, इंडोनेशिया मत जाओ, हमारे यहाँ पे आओ। ठीक है, तो इसीलिए। हाँ, अक्षिता ने बताया 4:30 से स्टार्टिंग फ्रॉम December 1, तो आज से ही ये ऑफर शुरू हो गया आपके लिए। ठीक है, तो आप जा सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका भी जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन वो कंट्रीज हैं जिनकी दुनिया चलती है टूरिज्म पे, जिनकी जीडीपी चलती है मेजरली टूरिज्म पे, और कोई इनके पास कुछ नहीं है, बस ये बहुत सीनिक है। नेपाल में जाओगे पहाड़ देखोगे, श्रीलंका में जाओगे बीचेस देखोगे, भूटान में जाओगे पहाड़ देखोगे, मालदीव में जाओगे बीचेस देखोगे। तो वही उन्होंने संभाल के रखा कि भैया आओ देखो, पैसे दो हमें। ठीक है, तो कुछ कंट्री टूरिज्म पे चलती हैं, दिस इज वन ऑफ देम। ठीक है, पर कोविड ने सबको हिला दिया था, कोविड में दुनिया बंद हो गई, तो 2 साल तक तो हर कंट्री हिल गई थी, जीडीपी हिल गई दुनिया की। ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज का दिक्कत वहां हो जाती है। टूरिज्म वगैरह इज वेरी लग्जरियस एक्टिविटी, मतलब पैसा है, टाइम है, तो जाते हैं लोग, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो ऐसा सामान बनेगा कि लोगों को चाहिए। चाइना इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, वो चीजें ऐसी बनाते दुनिया को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मजे की बात है, योगा इंडिया में शुरू हुआ है, योगा इंडिया में शुरू हुआ है, लेकिन योगा मैट्स कौन बनाते हैं? चाइनीज बनाते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटीज में। तो अमेरिकन वहां पर योगा कर रहे हैं, इंडियन चीज को कर रहे हैं, लेकिन वो जो मैट्स पे करते हैं वो चाइनीज होती है। तो चाइनीज हर चीज बनाते हैं भाई, हर चीज, खिलौने, मोबाइल, ये वो दुनियादारी सब बनाते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसीलिए आपको, हम सबको मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम शुरू किया कि भैया मैन्युफैक्चरिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, चीजें बनाओ, सामान बनाओ, दुनिया को बेचो। हम लोग सर्विसेज से पैसे कमाते हैं, सर्विसेज गुड, बट मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटी होनी चाहिए। ऑलराइट, वर्ल्ड पोलियो डे 20, 24, 28 या 26 अक्टूबर, तो कौन सा वाला अक्टूबर ये आपने बताना है, विच अक्टूबर?
आंसर्स आ रहे हैं, फटाफट आ रहे हैं, बट लेट्स सी। 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर इज ऑल्सो इंटरनेशनल यूएन डे। यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर को यूएन डे भी कहते हैं, ठीक है, यूएन डे भी कहते हैं 24 अक्टूबर को। बाकी सबके आंसर्स तो बहुत बढ़िया आए थे, जब जल्दी जल्दी, जबरदस्त। ठीक है, सही है, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, क्विकली क्विकली। हाँ, ये क्वेश्चन है, जो रैपिड एक्स नाम था जिसका जो नमो भारत हमने बताया नाम पहले, उनका इनॉग्रेशन किसने किया था, हु इनॉग्रेटेड इट? ठीक है, आई थिंक ये भी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं होगी, आई थिंक ये भी बता दोगे आप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सही है सही है, आंसर बिल्कुल बढ़िया बढ़िया आ गए हैं। और सही आंसर्स आए हैं, मोस्टली सही हैं सबके, मोस्टली सबके सही हैं, एक आध का यहाँ वहाँ हो गया, बट मेजरली आप सबके करेक्ट आंसर है। और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, चलो क्विकली रिवीजन हो पा रहा है, दिमाग में चीजें बैठ रही हैं, हाँ लग रहा है, हाँ हमारे जो हमने पढ़ा था वो कुछ कुछ तो हमारे पल्ले पड़ा हुआ है और हमने सही से बता रहे हैं। तो आई थिंक मैं कमेंट बता दो मुझे फटाफट कि बढ़िया लग रहा है, रिवीजन चीज बैठ रही है दिमाग में, अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि आंसर्स बन रहे हैं हमारे। ठीक है, तो एक बार मुझे फीडबैक दे दो आप लोग। ठीक है, लावण्य का आ गया, हर्षित का भी आ गया। हर्षित कह रहा है हाँ कॉन्फिडेंट आ रहा है, हाँ पढ़ा है, हर्षित मैं कह रहा हूँ ना आप सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बस कभी अपने का कम मत समझना, आप सब में चीजें की हुई हैं। हाँ कुछ कुछ भूल गए थे बट बाकी में याद आ रहा है, तो बहुत बढ़िया है, दोबारा हो रहा है, चीजें दोबारा हम सर्कल में डाल रहे हैं। ऑलराइट, 24 पे आते हैं, बिशन सिंह बेदी जो रिसेंटली पास्ट अवे हो गए थे, हाँ लास्ट मंथ, तो एक्चुअली कौन से क्या थे वो, ही वाज विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, हाँ आ गया आंसर, बढ़िया, सिमर का भी आ गया है। और किसका आया आंसर? वी हैव जिया का, राघव का, प्रज्वल का, सिमर का, तनिष्का, राधिका, बढ़िया, हर्षित का भी आ गया, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर, ही वाज ए लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर। ठीक है, और इंडिया के स्पिन कोच भी रहे थे, मैनेजर भी रहे थे, तो इंडियन क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम थे ये, इंडियन क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम थे। 83 के वर्ल्ड कप से पहले खेलते थे ना, तो तब मतलब काफी बड़े बड़े लोग, हम लोग तो जानते हैं, सचिन कपिल देव हो गए वो 83 वर्ल्ड, सचिन, उसके बाद विराट कोहली, तो हम इनको जानते हैं। लेकिन ये पहले के जमाने में जब क्रिकेट इंडिया में उतना देखा सुना या समझा नहीं जाता था, ये उस जमाने के दिग्गज लोग थे। ठीक है। ओके, इनमें से किसने विक्रम 1 नाम का एक रॉकेट लॉन्च किया है? इसरो तो रॉकेट लॉन्च करता है, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी आ गई हैं। ठीक है, जैसे नासा है, यूएस की नासा के साथ दे ऑल्सो है स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन। तो स्पेस एक्स का काम क्या है? देखो, रॉकेट जो थे पहले, रॉकेट पहले के जमाने में ऐसे हुआ करते थे कि रॉकेट ऐसे गया, लॉन्च हुआ, एंड देन उसने अपना यहाँ से ये जो सैटेलाइट है ये लॉन्च कर दिया आगे, और बाकी जो पूरा मटेरियल था वो जाके 5 समंदर में गिर के टूट जाता था, तो दोबारा, और दोबारा लॉन्च करना तो दोबारा स्टार्टिंग से दोबारा बनाना पड़ेगा सबको, तो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस था। तो अभी स्पेस एक्स ने क्या बोला, भैया हम लॉन्च करेंगे और यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगी, लेकिन ये वापस धरती पे लैंड करेगा आराम से, इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इससे 1/10 कॉस्ट हो गई भाई, 1/10। पहले 100 रुपया था, अब 10 रुपए में होता है, तो बड़ी बात है, 1/10 होना बहुत बड़ी बात है। तो ये स्पेस एक्स ने करके दिखाया। तो सिमिलरली इंडिया में बहुत सारी कंपनीज स्टार्ट हुई हैं जो स्पेस की, इंडिया इज वन ऑफ द मेजर पावर्स इन स्पेस, हम लोग सस्ते में बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। तो दुनिया भी मानता है ये बात कि सस्ते में काम करवाना है इंडिया से। तो स्काई रूट टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जो छोटा एक रॉकेट बनाया है, विक्रम 1। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कंट्री 49 पैरेलल से मतलब उन दोनों की जो बाउंड्री है उसको 49 पैरेलल कहते हैं? कौन सी वाली कंट्री जिसकी बाउंड्री को 49 पैरेलल हम कहते हैं? जैसे इंडिया पाकिस्तान की होगी रैडक्लिफ लाइन, इंडिया पाकिस्तान की होगी रैडक्लिफ। तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप 49 पैरेलल किन दो कंट्रीज के बीच की लाइन को कहते हैं? दैट इज अ क्वेश्चन। ओके, बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, द करेक्ट आंसर इज यूएस कनाडा, बहुत बढ़िया, यूएस कनाडा के बीच में 49 पैरेलल। आप बोलोगे पैरेलल क्या है, पैरेलल क्यों आ गया यहाँ पे? पैरेलल का मतलब वही है जो हम सब जानते हैं, और वो एक्चुअली ये टॉकिंग अबाउट लैटिट्यूड, 49 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड तो बिल्कुल सीधा होता है, तो दो कंट्री के बीच में जहां से वो लैटिट्यूड निकल रहा है वो उसी को मान लिया बाउंड्री। ठीक है, तो जहां जिन कंट्रीज के बीच में आपकी दोस्ती अच्छी होती है तो वो
आराम से मान जाते हैं, हाँ भाई चल ये तेरा वो मेरा। और जहाँ पे दुश्मनी होती है वहां पे आप देख लो इंडिया पाकिस्तान वाला कैसे कैसे ऐसे ऐसे पूरा टेढ़ा मेढ़ा सा हो रखा है। जहाँ पे दोस्तियां नहीं होती वहां पे ऐसी लाइनें कटती हैं, और जहाँ पे अच्छे रिलेशन होते हैं वहाँ पे या कोई और काट के दे। जैसे नॉर्थ यूरोप है, नॉर्थ सॉरी नॉर्थ अफ्रीका है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका बिल्कुल ऐसे रखा, किसी ने केक नहीं काटते बर्थडे का, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे। तो यूरोपियन कंट्रीज ने आपस में बांटे, भैया ये लैंड तेरी है, चल ये वाला पीस तेरा है, वो वाला पीस मेरा है। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे स्केल रख के काटा है पूरा मैप के ऊपर। अब देखना कभी इसको, यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है। इनमें से किसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं? बेल्जियम, भूटान, बोलीविया, नेपाल। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट इनमें से किसको कहते हैं? दैट इज अ क्वेश्चन। ठीक है। चलो बढ़िया आंसर्स आ गए, बढ़िया आंसर्स आ गए। और कम आंसर्स आ रहे हैं यार, बंदे ज्यादा है आंसर्स कम है। आई वुड एक्सपेक्ट कि सारे बंदे देंगे आंसर, तो अच्छा भी लगता है, मास पार्टिसिपेशन होता है। एक्सक्यूज मी। ओके, चलो इसको भी क्विकली करते हैं। तो करेक्ट आंसर है भूटान। तो भूटान इज नोन एज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भूटान इज नोन एज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। चलो, थिम्फू कैपिटल है भूटान की। ओके। इनमें से कौन से वाले आर्टिकल ने अनटचेबिलिटी को मना कर रखा है? एक्सक्यूज मी। आपको बताना है कौन सा आर्टिकल 17, 16, 18 या 19 अनटचेबिलिटी को मना कर रखा है कि ये गलत चीज होती है। ये आपने बताना है कि विच वन इज द करेक्ट वन। हम्म, ठीक है, बढ़िया आंसर्स, बढ़िया आंसर्स। सो सबने आंसर मेजरली सही बताया। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है, बट अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये होती क्या है, मतलब किसको कहते हैं, डिफिनेशन नहीं दी हुई। पर आर्टिकल 17 में उसको बोला गया है कि 17 में कि दिस हैज शुड नॉट बी प्रैक्टिस एट ऑल। ठीक है। ओके, 28 29 पे आते हैं। सती सिस्टम जो है ना 1829 में ये अबॉलिश हो गया था। 1829 में इट वाज अबॉलिश्ड सती सिस्टम। आपको बताना है कि किन्होंने किया था। ठीक है, किन्होंने किया था। सती सिस्टम सबको पता ही है, सती सिस्टम, सती होना क्या होता था पहले के ज़माने में, आप तो ये बिल्कुल पुरानी बातें हैं। ठीक है। और 1829 में इसको पूरे इंडिया से अबॉलिश, पूरे इंडिया से क्या, जहां जहां पे अंग्रेजों का राज था वहां से। तो आपको पता ही है इंडिया में एक तो अंग्रेजों का पार्ट था इंडिया, और दूसरा जो बचा कुचा पार्ट था वो राजा रजवाड़ों का पार्ट था। तो राजा भी थे और अंग्रेज भी थे। तो जहां जहां राजा थे तो उनका राजाओं का रूल था, पर जहां जहां अंग्रेज थे अंग्रेजों का रूल था। तो अंग्रेजों ने बोला कि दिस इज नॉट अलाउड इन इंडिया, तो इन आवर एरिया। तो लोगों ने एक दिन कहानी बताता हूँ मैं, शायद आपको शायद बता रखी है मैंने कहानी, बट एक बार, हाँ। विलियम बेंटिंग थे। तो विलियम बेंटिंग इज द करेक्ट आंसर। तो विलियम बेंटिंग एक दिन जा रहे थे अपने सिपाहियों के साथ। तो उन्होंने देखा कि कोई सती कर रहा है, तो उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला "ये सती है, हमारा पर्सनल मैटर है, आप लोग बीच में मत आओ"। तो अंग्रेजों ने बोला कि यार अगर तुम अपने हिसाब से करोगे, अगर तुम बोल रहे हो तुम्हारा पर्सनल मैटर हो, तुम्हारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, तो हमारे यहाँ पे भी वैसा होता है कि जो ऐसा गलत काम करता है हम उसको सूली पे चढ़ा देते हैं। ये हमारा काम है, अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हारे साथ वो करेंगे। ठीक है। तो ये कहानी सुनी थी मैंने, पढ़ी थी मैंने, तो गुड आंसर। ठीक है। तो फिर उन लोगों ने नहीं किया था, वो छोड़ दिया था। नहीं तो विलियम बेंटिक इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। ठीक है। ओके, लेट्स क्विकली सी द नेक्स्ट वन। 30 पे आते हैं। हु वाज द मुगल एम्परर व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में बनी थी, तो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन उसका अबॉलिश का मतलब होता है सुशांत, उसको बैन कर देना, खत्म कर देना, मतलब हटा देना वैसे। ठीक है, अबॉलिश कर देना। सखी, प्रज्वल, सबका आंसर आ गया। तो जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, जब इंडिया में आए थे तब नहीं, जब अपनी कंट्री में उन्होंने बनाई थी। और वो ईयर था 1600, 1600। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, इंग्लैंड में बनी थी। आपसे पूछे तब इंडिया में मुगल एम्परर कौन था, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये तब इंडिया में कौन था? वो था भैया अकबर, अकबर द ग्रेट। और अकबर के बारे में कहते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं ऑफकोर्स। बस सारे लीडर्स, सारे मुगल एम्परर्स में से इसको सबसे ज्यादा शौक था
इंटेलेक्चुअल बातें और ऐसे अपने आसपास ऐसे लोगों को बिठाना जिनसे वो अच्छी अच्छी बातें समझ सके। और बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो दूसरे रिलीजन के लोग हों, चाहे क्रिश्चियनिटी के हों, चाहे हिंदुज्म के हों, चाहे जैनिज्म के हों, बुद्धिस्ट हों, जो भी हो, उनको बुलाता था, बैठता था, उनसे समझता था, सीखता था कि यार आपके में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या है, कैसा है। वो सबकी बातें सुनता था। और उसने अपना खुद का भी एक रिलीजन शुरू किया था, दीन इलाही नाम था उसका। उसने अपना खुद का रिलीजन शुरू किया था कि मैं अलग धर्म स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ फॉलोअर्स भी उसके हो गए थे, उसके कोर्ट के जो कोर्टियंस थे वो थोड़े से हो गए थे उसके इन्फ्लुएंस में आके। उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, दीन इलाही रिलीजन का नाम था, उसने स्टार्ट किया था। बट इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात ये अकबर के बारे में कि ये अनपढ़ था। ही कुडंट रीड और राइट। लेकिन उसको किताबों का बहुत शौक था। ये सुनता था कि क्या लिखा है, बताओ मुझे, समझाओ। पर ये अनपढ़ था, ही कुड नॉट रीड और राइट। ठीक है, तो उसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पर जो अनपढ़ बंदा था उसको द ग्रेट बोलते हैं, अकबर द ग्रेट। उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया था। तो ये उसके बारे में एक अच्छी बात है, या फिर एक फन फैक्ट है। आगे देखते हैं। रेडी वन पे आते हैं। इनमें से कौन सा ले का नया नया ब्रांड एम्बेसडर रखा था? ठीक है, ये वर्ल्ड कप के दौरान की बात है। वर्ल्ड कप के दौरान की बात है, तब रखा गया था। हाँ, तो ये तो मेरे ख्याल से किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है अलग से। लेस का तो आई थिंक एड भी देखी होगी, नो लेज नो गेम, है ना? नो लेज नो गेम। तो ये वाली वो एक एड में आपने देखा था कि वो जो क्रिकेटर है वो घर पे आते हैं और फिर वो बोलते हैं लेस कहाँ है, तो बोलते हैं लेस है नहीं, तो ढूंढ के लाओ। यस, तो आई थिंक सबको एड वेड याद आ गई होगी। वी टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मिस्टर एम एस धोनी। ठीक है, MS7। यस, तो अभी IPL में आने वाले हैं, देखेंगे इन एक्शन। बट वर्ल्ड कप की लॉस के बाद आई थिंक सबके मन में एक ही बात है कि वी डू मिस MS धोनी, है ना? वी डू मिस MS। तो धोनी ऐसा क्रिकेटिंग माइंड होना बहुत जरूरी है। यू कैन प्ले गुड क्रिकेट, यू कैन हिट शॉट्स, लेकिन एक क्रिकेटिंग माइंड भी होता है ना। इंडिया इंडिया की पूरी इनिंग्स बैठ गई थी, उन्होंने प्रेशर डाला और इंडिया वाले बैठ गए थे। ठीक है, तो या कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी वर्ल्ड कप फाइनल। पुरानी बातें हैं, दुख होता है याद, बातें याद करके। क्योंकि यार या तो हम अगर मर मर के पहुंचते तो अलग बात थी, पर हम इतना अच्छा खेलते हुए पहुंचे और फिर हार जाना तो ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है। आई थिंक आप लोग भी, यू ऑल्सो शेयर द सेम इमोशंस, है ना? आई आई अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, अभी T20 में बदला ले रहे हैं हम उनकी टीम बी से, बी टीम से बदला ले रहे हैं उनकी हम। ठीक है, ठीक है। ओहो, ये क्या आ गया? ओके, इनमें से किसने बुक लॉन्च की है, लिखी है, लॉन्च नहीं की बल्कि लिखी है, लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े? तो आई थिंक वो देख ही लिया आपने, आप सबने आंसर देख ही लिया। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो सबका सही है, अब देख ही लिया तो देख ही लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर रिवील करते हैं इसका। सी, मतलब बहुत सी नहीं है, ये D होगा यहाँ वाला। ठीक है, डोंट माइंड, वो चलता है। आप बस आंसर देखना। ऑलराइट। कोटक महिंद्रा बैंक के नए CEO कौन है, ये आपसे पूछ रहे हैं। उदय कोटक, अरुंधति भट्टाचार्य, अशोक वासवानी। तो इनमें से कौन है आपके नए CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? तो ये आपसे पूछ रहे हैं। और आई थिंक सबने बता ही दोगे आंसर, ये वाला आंसर, अशोक वासवानी। नेक्स्ट, इंडियन टीम के हेड कोच कौन है? हु इज द हेड कोच ऑफ, न्यू हेड कोच अपॉइंट किया इंडियन वुमेन्स टीम के, ये कौन है? अजय जडेजा, अमोल मजूमदार, गौतम गंभीर या देवाशीष मोहंती? एंड द करेक्ट आंसर इज अमोल मजूमदार। बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं इंडियन टीम में, उतना इतना इनका कंट्रीब्यूशन नहीं रह पाया, बट स्टिल जो डोमेस्टिक सर्किट है उसमें काफी वेल नोन है। ठीक है, वुमेन्स वुमेन्स टीम के हेड कोच है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ओके, सो मल्टीनेशन एक्सरसाइज हुई है, नेवल एक्सरसाइज हुई है, इनिशिएटेड बाय इंडियन नेवी। अगले साल फरवरी में होने वाली है। नेवल एक्सरसाइज का मतलब पता है आपको? वही नेवी वॉर गेम्स करेंगे, और मल्टीनेशन है तो एक से ज्यादा कंट्रीज आएंगी। तो इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज करती है। और मैं आपको हिंट देता हूँ, बिल्कुल सही है। आप ये, इस जो होने वाला है ना, जो आंसर है वो आप देख रहे हो। वो आप देख पा रहे हो। ठीक है, वो बिल्कुल आपकी नजरों के सामने है वो चीज। हाँ, जो समझ गया तो समझ गया। एक्सक्यूज मी। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बताया आपने, करेक्ट आंसर है सी पार्ट, मिलन। यस, यस। तो मिलन होगा बहुत सारी नेवीज का वहां पे, और वहां पे वॉर गेम्स खेलेंगे मिलन करते हुए। ठीक है, तो गाइज ये आज का सेशन था। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा रिवीजन हुआ होगा, माइंड थोड़ा फ्रेश हो गया। हाँ, हमें आता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होता है। चलो यार, इतना तो आता है, मतलब एक बार पढ़ के भी काफी चीजें कलेक्शन में है हमारी। ठीक है, सो आई होप यू हैड फन, एंड मिलते हैं आपसे अगली बार।
ठीक है। एंड अगले सेशन में, अगली क्लास में विल हैव सम न्यू, तो वो तो हमारा न्यू सेशन ही होता है, लास्ट जो होता है हमारा रिवीजन वाला होता है। ठीक है गाइस, सो सी यू नेक्स्ट टाइम एवरीवन, एंड टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स। हाँ सुशांत, आई वेट फॉर यू 5 मिनट्स, यस। बाकी बंदे अगर किसी को रुकना है तो रुक सकता है, बाकी लोगों के लिए बाय है। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स। एंड इफ यू वांट टू हैव अ मेंटरिंग सेशन यू कैन आल्सो कनेक्ट विद मी, हम लोग बात कर लेंगे, थोड़ा सा जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो गाइस, आप सबके लिए सेशन खत्म हो रहा है। आई विल वेट फॉर सम टाइम, जिनको रुकना है उनके लिए, बाकी यू मे लीव, एवरीवन मे लीव। ठीक है। एलेट की क्लास यही है, आप हर्षित, एलेट में यही वाले क्वेश्चंस आते हैं, एलेट में यही वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें कुछ अलग नहीं है, इस तरह के हम उसमें भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है सुशांत, आई वुड रिक्वेस्ट यू यार, आप मुझे ना अपना नंबर दे दो। ठीक है, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मैं अभी आपको कांटेक्ट कर दूंगा। आप मुझे नंबर दो अपना, मैं फोन पे बात करता हूँ आपसे। ठीक है, आई विल कनेक्ट यू ऑन फोन। ठीक है। नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। मतलब अभी आप ये मत सोचो कि हमें क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता, अभी आप अपना बेस्ट दो। ठीक है, बिकॉज हम लोग आगे का नहीं सोचेंगे, हम बिल्कुल जो करंट सामने उसका सोचेंगे। अभी जो एग्जाम आप देने वाले हो उस एग्जाम में आप सोचो कि यार मेरे को अपना बेस्ट देना है, मेरे को अपना बेस्ट देना है। एक बार जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद वी कैन फिगर आउट बाकी चीजें कौन कौन सी बेस्ट बैठती हैं। ठीक है, तो डू नॉट बी टू कंसर्न कि यार ये नहीं होगा वो नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। तो आप इतना मत सोचो, अभी ये पेपर हमारा कल परसों ही है, तो मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ ये सोचो कि ये पेपर मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, और 100% होगा यार, क्यों नहीं होगा। ठीक है, आप बस ये मान के चलो होगा, और हो रहा है। और अगर नहीं होता है, लेट्स जस्ट से कि फॉर 1% नहीं होता, देन विल सिट, विल अंडरस्टैंड कि और क्या क्या ऑप्शंस है। ठीक है, क्लैट करने के बाद भी बहुत सारा आपको आगे जाके भी अच्छा करना है, सेमेस्टर में बहुत अच्छा करना है, तो वो आगे की बात है, बट ये स्टेप वन ही है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे अपना स्ट्रीम बंद कर देता हूँ ताकि हम वी कैन कनेक्ट अदरवाइज बाद में। ठीक है, बट थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग एंड ज्वाइनिंग। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।